TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें लेकर हम हाजिर हो। आज की खबरों की शुरुआत हम करते हैं जो पंजाब सरकार की तरफ से रसोई स्कीम शुरू की गई, जिसमें उन्होंने अब आटा तो पहले ही था हालांकि, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें जैसे दाल, चीनी, हल्दी, तेल, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करती हैं। सरकार ये दावा करी कि स्कीम से 40,000 परिवारों 40 लाख परिवारों को बहुत फायदा होगा। जिनके पास नीले कार्ड है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये दिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि सरकार की तरफ से चीजें तो दी जाए, लेकिन इससे वित्तीय बोझ भी जो है स्टेट पर बढ़ता है। लगातार पंजाब सरकार कर्जा ले रही है। इस बारे में जब हमने फूड डिपार्टमेंट के जो कैबिनेट मिनिस्टर राजन कटौंजक से बातचीत की, तो उन्होंने क्या खास कहा इस बारे में कि वित्तीय बोझ कैसे बढ़ रहा है, क्या इसका फायदा 2027 के जो है चुनाव में होगा। उन्होंने ये भी चीज कही कि ये स्कीम पूर्ण रूप से पंजाब सरकार, इसमें केंद्र का कोई लेना देना नहीं, लेकिन हाँ वोट अगर बढ़ता है तो जाहिर है लेकिन पंजाब का फायदा हो रहा है पंजाब के लोगों को। उन्होंने क्या खास कहा ये आपको सुनाते हैं। और ये अप्रैल तो शुरू हो रही है पहली ਇਹਦੀ ਸਾਈਕਲ ਸੈਕੰਡ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੁਲਾਈ ਚ, ਤੀਜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 1-2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਕਫੈਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, 2 ਕਿਲੋ ਕਣਕ, 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ, 2 ਕਿਲੋ ਦਾਲ, 1 ਲੀਟਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, 1 ਕਿਲੋ ਨਮਕ ਤੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਟੋਟਲ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਫਡੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਔਰ ਚੁਣਾਵੀ ਈਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ ਚ ਕੋਡ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਟਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪੜਾਅ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮੀ ਭੋਗ ਪਾਤਾ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਖਰੇਵਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਲ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਟੋਟਲ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਖਰਚਣਾ, ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ किसी होर ना देखे। चोणा तो 2-4 महीने बाद कोई ना कोई तुरियां रहंदियां ने। आप पंजाब का जिक्र कर रहे हैं तो बात कर लेते सुखजिंदर सिंह रंधावा की, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके के साथ गुरदासपुर, क्योंकि वो उनका हल्का पड़ता है, और जिस तरीके के साथ वहां पर 2 पुलिसकर्मियों को मार दिया जाता है, पंजाब सरकार से जब ये सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं जांच का विषय। लेकिन विपक्षी पार्टी इसको लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर साफ सवाल खड़े कर दी। कहते जब पुलिस चौकी के अंदर पुलिस कर्मियों के साथ ऐसा हो सकता है जिससे महज 1 किलोमीटर दूर जो वहां पर बॉर्डर है, तो आखिर आम लोग कितने सुरक्षित होंगे। आज सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक अपना एक वीडियो शेयर करी। वो बॉर्डर एरिया के कुछ पुलिस थानों के पास जाते हैं और जायजा लेते हैं और दिखाते हैं आम लोगों को कि देखिए कैसा। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने इस बारे में किस इस टाइम कोटली सूरत वाली पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा, और आ सामने पुलिस स्टेशन है, उत्थे बाहर भी संतरी कोई नहीं, आ इन्हां दा नाका, इत्थे भी संतरी कोई नहीं। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ
ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਮੈਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਕੇ ਦੇ ਖੜਾ, ਕੋਟਲੀ ਸੂਰਤਮੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ MP ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ SHO, ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚੂ? ਕੋਟਲੀ ਸੂਰਤਮੱਲੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਖਾਲੀ, ਧਿਆਨਪੁਰ ਖਾਲੀ, ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਅਲੀਵਾਲ ਖਾਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ? इन्ह NGO का काम है सड़कों पर फिरना, ना कि रात थाने अंदर बैठना। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन राइट कमीशन की। जब से ह्यूमन राइट कमीशन में जो है वहाँ के चेयरमैन शेंटी की तरफ से अपना औहदा संभाला गया है, तो बहुत सारी चीजें, बड़ी एक्टिविटीज पंजाब में देखने को मिली हैं। लेकिन एक 32 हॉस्पिटल चंडीगढ़ का सरकार में, जो बहुत बड़े हॉस्पिटल, इसको PGI 32 और 16, 3 हॉस्पिटल का जिक्र होता है। लेकिन एक शर्मनाक घटना सामने, इंसानियत को शर्मसार करने वाली। दरअसल वहाँ पे अचनचेत चेकिंग के लिए पहुंचते ह्यूमन राइट कमीशन की टीम, वहां पर उनके सामने देखा जाता है वेंटिलेटर्स नहीं है, लोगों को, मरे हुए लोगों को पंप दिया जा रहा है। और जब वो वहां अचनचेत चेकिंग के लिए पहुंचते हैं, उनके सामने कई लोगों की डेथ हो जाती है, मोर्चरीज नहीं है। सवाल ये खड़े होते हैं, जिस हॉस्पिटल को इतना बड़ा कहा जाता है, इतनी बड़ी इसमें बना है, वहां पर इस तरीके की चीजें हो रही है, तो जाहिर है आम लोगों को कितनी प्रॉब्लम। इस बारे में हमने खास बातचीत किया। 72 घंटे का समय 32 हॉस्पिटल को दिया गया, कड़ी कार्रवाई के उन्होंने आदेश दिए। मानवता को शर्मसार करने वाला, तार करने वाला हादसा सेक्टर 32 चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में हो रहा है, लगातार हो रहा है। वो तो मैं चला गया, एक सरप्राइज विजिट मैंने रख दिया, उसके ऊपर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन की कि आप विजिट क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हमें परवाह नहीं थी, हमारा हक बनता है, हमारे पास राइट है जाने के, मानवाधिकार आयोग के। लेकिन मैंने जो देखा वहाँ पे सरप्राइज था। मतलब आज आप किसी पंछी या पशु को भी मार देते हैं, FIR होती है। वहाँ इंसानों के साथ यार ऐसा जलालत वाला व्यवहार हो रहा है कि 72 लोग स्ट्रेचर के ऊपर हैं, बेड नहीं है, 1.5 फुट का 1 फुट का स्ट्रेचर होता है, नीचे चादर भी नहीं है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इनको कितने घंटे रखते हैं? कह रही 5 साढ़े 5 घंटे। तो जब लोगों से हमने घूम के पूछा तो कोई 24, कोई 48, कोई 72 घंटे से भी उस पर था, स्ट्रेचर पे 72 आवर्स से उनको वार्ड में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही। 550 करोड़ का फंड मिलता है साल का आपको वहाँ से डॉक्टर सैंक्शन हो चुके हैं, आपने टीम नहीं रखी, कॉन्ट्रेक्चुअल रखते हैं आप लोग। फिर हम ऊपर चले गए वार्ड में जी, आधे से ज़्यादा पेशेंट को एम्बू बैग दे रखा था, क्योंकि वेंटिलेटर नहीं लगाए थे उन्होंने, हाथ से चलाया जा रहा है। कोई 9 दिन से, कोई 10 दिन से, कोई 12 दिन से बच्चियाँ छोटी छोटी हाथ से अपने पापा के लिए चला रही हैं, मम्मी के लिए चला रही हैं। और एक फौजी भाई की मदर की डेथ होगी, 4 दिन से बॉडी पड़ी थी वहाँ पे, 4 घंटे से बॉडी पड़ी थी। और वो कह रहे हैं जी मैंने देश की रक्षा की है, लेकिन मेरी माँ की रक्षा नहीं कर पाया इन डॉक्टरों की जलालत की वजह से। और 4 घंटे से वो बॉडी पैक नहीं कर रहे हैं। एक 2 भाई और पंप कर रहे थे। मैंने कहा माता जी ठीक है? कहते नहीं ये तो मर गए हैं। मैंने कहा मर गए तो पंप क्यों कर रहे हो फिर आप? कह रहे डॉक्टर साहब ने कहा पंप करते रहो। तो मैंने डॉक्टर साहब को और नर्स को बुलाया, मैंने कहा आप ECG करके दिखाइए मुझे, स्टेथोस्कोप लाइए अपना। तो कहने लगे नहीं शी इज़ डेड। मैंने कहा डेड तो फिर आप उसको पंप क्यों चलवा रहे हो? कहने लगे जी जल्दी बता दो, तो घर वाले कई बार परेशान हो जाते हैं। तो मैंने कहा ये परेशानी नहीं है कि बेचारे 10 दिन से पंप ही चलाए जा रहे हैं। मैंने बुलाया उनको, जो बड़े डॉक्टर्स थे, कहने लगे जी 9 वेंटिलेटर हैं पर हमारे पास चलाने वाला कोई नहीं है। अरे यार क्या कर रहे हैं आप? चंडीगढ़ जैसा शहर, 32 सेक्टर का हॉस्पिटल, इतना बड़ा ट्रॉमा सेंटर, और आपके पास कोई सुविधा नहीं है। फिर कहते हैं जी यहाँ तो पंजाब के बहुत लोग आते हैं। अरे भाई क्यों नहीं आएंगे? उनका जन्मसिद्ध अधिकार है आने का। भाई सरकार आपको पैसा देती है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो लोग क्यों नहीं आएंगे? मैंने जाके उनकी मोर्चरी देखी जी, 6 या 8 वहाँ पे जो मोर्चरी बॉक्स है सब टूटे पड़े थे, सालों से नहीं चले थे। वो एक ही कमरे में बॉडियाँ रख रहे हैं, ऐसे खुले में रख रहे हैं, जो कि मानवता के खिलाफ है, जो कि एक डिग्निटी ऑफ द डेड, ये भी तो उनका अधिकार है एक डेड बॉडी का कि उसको मान सम्मान मिले। बॉडी मिक्स भी तो हो सकती है, जो लुधियाना में हुआ है, कोई किसी के लिए जा सकता है। तो कुल मिला के एक जलालत मैंने जो देखी और मानवता को तार करने वाले जो शॉट देखा मैंने, वो सेक्टर 32 चंडीगढ़ के हॉस्पिटल के अंदर देखा है। अब पंजाब का जिक्र कर लेते तो अब हरियाणा की जिक्र कर लेते हैं। तो हरियाणा का बजट सत्र लगातार जारी है और गवर्नर के अभिभाषण पे लगातार चर्चा हो रही है। और आज कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया और ITFC के जो
घोटाला हुआ, रोजगार को लेकर तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर आज जमकर जो है हल्ला कांग्रेस का रहा। उन्होंने पैदल मार्च निकाला। इस बारे में हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत की। खास उन्होंने क्या कहा, किन मुद्दों को लेकर आइए आपको सुनाते हैं। 590 करोड़ के मुद्दे पे कल चर्चा करने के लिए मना कर दी गई, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, हम जो जवाब दिया मुख्यमंत्री ने वो संतोषजनक नहीं था, क्योंकि आज के अखबार में है एफडी ने 6 महीने पहले इनको चेताया था, तो उस टाइम क्यों नहीं कदम उठाए? सर, आपको क्या लगता है लैक कहाँ पर हुआ इस चीज का? लैक कहाँ पर रहा? कितना बड़ा घोटाला नहीं पता कर पाई? हाँ, तो अभी तक लापरवाही है सरकार की। जिस मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, एक बार फिर से हम जो है की ही बात कर लेते हैं। तो आपको जानकारी के बता दें कि सदन के अंदर सीएम सैनी की तरफ से IDFC जो बैंक जो 590 करोड़ का जो घोटाले का जिक्र था कि सरकारी उस पर हुआ है, इसका उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बकायदा 24 घंटे के अंदर अंदर वो कार्रवाई भी करती गई है और जिन लोगों के नाम थे उसके खिलाफ भी कार्रवाई उन्होंने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के सेक्शन में बोला। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि बकायदा 24 घंटे के अंदर वो सारा रिटर्न जो है आ चुका, बकायदा विद जो है इंटरेस्ट के साथ आया है। और उन्होंने ये भी जानकारी सदन में दी कि जो भी इस तरीके की जो घोटाले करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। हमारे विपक्षी साथियों को शायद इस बारे में जानकारी नहीं है कि अब हरियाणा की शासन प्रणाली भी वो पूरी रूप से बदली हुई है, बदल चुकी है। वह दौर अब नहीं रहा जब घोटालों को भी दबा दिया जाता था, जो घोटाले की फाइल होती थी उसको भी दबा दिया जाता था। अब वो दौर नहीं रहा, अब वो दौर नहीं रहा माननीय अध्यक्ष जी। नहीं तो घोटाले की फाइल को दबा दिया जाता था। मेरे पास कई फाइलों को दबा दिया जाता था। जिम्मेदारी तय नहीं होती थी माननीय अध्यक्ष जी, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होती थी। ये हालात थे माननीय अध्यक्ष जी। नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस ऑल टू करप्शन की नीति पर मजबूती से काम कर रही है। मैं ये हाउस को जानकारी देना चाहता। तो ये थी आज की पंजाब और हरियाणा की टॉप 5 खबरें। आप देखते टीवी 9 का डिजिटल